So, hello guys, and today we have Tanmay Mittal again. तो अच्छा ये रहेगा कि दिस इंटरव्यू इज कंडक्टिंग इन क्लास, मैंने ऑनलाइन वगैरह नहीं कराया और एडिटिंग भी इसमें नहीं करूँगा. दिस विल बी अगेन एडिटिंग फ्री इंटरव्यू as natural as it can be, and since it is being conducted at class, so students are already here. Something about तन्मय अच्छा रहेगा. तन्मय अपने बारे में बहुत बताएगा, कितनी लंबी हिस्ट्री रही मुझे तो मालूम है, बट आई स्टिल वांटेड टू टेल यू. और उसके बेसिस पे देयर बी क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन योर माइंड, एंड आई फ्रॉम लास्ट 9 years आई हैव सीन कि क्वेश्चन जो दिमाग में आते हैं ना कैंडिडेट्स के वो सेम होते हैं. तो ऑफ कोर्स दिस विल बी रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ द इंटरव्यू, बट स्टिल यू हैव एनी अदर क्वेश्चन इन योर माइंड, so feel free to give it in the comments when it is on YouTube, and you can ask me any other question. So first thing is that Tanmay only will tell you that when he is joining, how he is joining, and how long his struggle was to become an officer. Over to him. Yeah, thank you so much, sir. So it feels nice दोबारा से क्लास में आके to tell about myself. As sir told my name is Tanmay Mittal, and I currently am graduating from the college. I am in the final year, and I have been recommended for IMA 155 course through CBSE, and my course will begin from July 2nd, 2023. So the history, if I talk about, it's not something very recent that to start with. I am associated with Nirmal sir since 2019. Which was my first attempt of SSB, and I was able to make it. I was able to clear it, although I got rejected due to the medical grounds. So, because I was given medically out, so I had to wait for another 3 years to make my first attempt. Problems are here. Yeah, so I was given medically unfit for eyesight. I had myopic eyes, and my myopia was 0.25 diopter beyond the acceptable limit. So I was given permanent unfit for 12+2 entries, that is TES, NBM, Meditech, and etc. So for that I had to wait for another 3 years to get my eyes operated and to remove my specs. And then I again started preparing for CDSE, and I was able to clear it in the first attempt. So yeah, history is quite good, and it's not like कि हर बार SSB जो हर बार clear हुई है. It's not like that. वो अभी discuss करेंगे तो पता चलेगा धीरे धीरे. Like first attempt में I was able to make it, लेकिन उसके बाद medically unfit हुआ. Then I had again 2 SSBs, but मुझे पता था अगर recommend हुए भी so कोई फायदा तो है नहीं recommend होगे, because medically unfit ही है. So जा नहीं पाएंगे. So I took them very lightly. So reject भी हुए हैं 2 बार. But whenever I attempted SSB seriously, and whenever I was dedicated towards it, so I was able to make it. And currently I am waiting for my joining letter. So yes, so the everything is okay. So Tanmay, what is your opinion that you need practice and guidance for clearing SSB? Like you said, you cleared it the first attempt, then again in the 2 attempts you were not able to make it. And this attempt also you prepared with me and you cleared it. So what is your opinion? Because a lot of people think कि बिना तैयारी के SSB हो सकती है. Yeah, I won't deny कि बिना तैयारी के SSB नहीं हो सकती है. That's definitely not false, because बंदे होते हैं जो कर लेते हैं. लाइक मेरे साथ भी था, जो मेरे साथ ही रिकमेंड हुआ था, वो बिना तैयारी के आया था, and he was just being honest about himself, and he was able to make it. But I would bring in a very little point that all makes the difference. People say it's about you, a teacher cannot transform you, and it's true to some extent. And it's all about practicing. Like if you practice psychology, you will be able to make it. If you practice GQ at home, if you practice group discussion with your friends, you will be definitely able to make it. If you practice interview, you can make it. But for someone who is starting with this field, you might be perfect in your own way, and you might be perfect for the courses as well. But we need to understand the point that SSB has a set format.
which I realized in the later, like in the later stages. SSB has a format, even irrespective of how perfect and how well groomed you are, you still need to know that what is it required in the SSB. अगर आपके पास सारी qualities है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो दिखानी कैसे है, so there is no point because they don't have time to invest in you. So even if you have very good communication skills, even if you have everything that is required to get recommended or be an army officer, if you are not able to express it in that point of moment, in that screen, जो 2 minute का discussion होगा, which will decide your 6 months of preparation. अगर उसमें आपको नहीं दिखा पाए, then it's of no use. If I talk about the only with the respect of SSB, it doesn't mean that you don't have anything. So first thing that, so coming back to the point, I believe that guidance was important for me and correct guidance was important for me, so that I knew कि मुझे करना क्या है वहाँ पर जाके. अगर आप practice भी करते हो, suppose you practice in your group, who is there with you, who will tell you from the third party view, from the eagle eye view कि तुम ये गलत कर रहे हो या फिर ये सही कर रहे हो, you have to take this path, you can mold this path. So ये कौन बताएगा तुम्हें फिर? So I believe that from this point of view, SSB के लिए guidance was important, at least for me. That is my point of view. But इसका मतलब ये नहीं है कि लोग recommend नहीं होते बिना coaching के भी. So yeah, that's my say. So the biggest zest of everything is that you have given almost 4 years of your life running behind army and to make your dream come true, right? So in these 4 years, how many times Tanmay you thought about giving up? And you thought it will be difficult. And like you told about CDS, so you were able to clear CDS in first attempt. So let's say कि इतना अच्छा नहीं होता, पहले अटेम्प्ट में CDS नहीं होता, तो वो लिमिट कहाँ आती जहाँ तन्मय ने वो सपना छोड़ दिया होता कि मैं आर्मी में नहीं जाऊँगा. क्योंकि तन्मय humble about himself, he has also joined NCC. In fact, I told him not to join that, but he also joined NCC just to be in touch with the army for those 3 years when he was medically out and he had to prepare for CDS. So what is your say on that? So give up वाली तो कोई बात नहीं होती है, but हाँ मेरा ये एटीट्यूड था, like मैं डेडिकेटेड था फोर्सेस के लिए, हूँ रहूँगा भी, लेकिन मेरे मन में ये नहीं था कि मैं बस लगा ही पड़ा हूँ. मतलब मेरा ये था कि हाँ कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लेंगे. मैं I always believe in perfectionism, like एक बार में करना है या फिर बिल्कुल भी नहीं करना है. So मेरा वो रहता है. बट जब मैं इस फील्ड में घुसा, when I came to you for the first time, मैंने यही बोला था या तो इस बार होगा या फिर कभी नहीं होगा. I'm coming for the first time and last time. अगर हो गया तो हो गया, वरना कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और भी अच्छा कर लेंगे लाइफ में. जब सीरियसली के लिए गया था, एटलीस्ट मेरा एटीट्यूड यही था, ऑल्दो आई न्यू कि मैं बार-बार अटेम्प्ट करता एंड आई वुड हैव वर्कड ऑन माय सेल्फ. सो आई डिडंट हैव दिस नेवर गिव अप एटीट्यूड. आई जस्ट हैड दिस जीरो डेस्परेशन एटीट्यूड कि नहीं होगा तो भी ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें लाइफ में करने के लिए. सो लेकिन अब सोचा ही था कि एक बार में करना है, तो 4 साल थे, 3 साल थे मेरे पास. सो आई वर्क वेरी डिलिजेंटली ऑन दैट. एवरीथिंग व्हिच आई डिड इन माय लाइफ, even if I talk about waking up in the morning or sleeping at night, one thing that was at the back of my mind was I have to clear SSB, and how would an officer behave in that moment? How would a leader behave in that moment? Even if I have to wake up. So that thing really helped me, and NCC में वो चीज़ मुझे काफी हेल्प करी थी because that opened up an avenue. First of all, या वो मुझे because वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, फिर मिलिट्री बैकड्रॉप की ऑर्गेनाइजेशन है, so उसने मुझे एक्सपोजर दिया था to मिलिट्री लाइफस्टाइल, even not being in military, so वो मुझे attach रखा आर्मी से. Secondly, it opened up an avenue जहाँ पर I could test myself as a leader, as an officer, because I realized that there were 2 ways of living the NCC life. First was give a C certificate to SSB low, and second was की experiment, try and take responsibility, take initiative. So I tried that always. मुझे कोई भी मौका मिलता था जहाँ पर I could take a lead or I could lead men, so I never left that, and I tested myself that how would an officer lead and how would an officer react to that situation, or how they would lead the men. So I believed in that and I was able to crack it. When in second year, just at the rank of a cadet, not even corporal, I wasn't even, मतलब बना नहीं था उस टाइम पे, ऑफिशिएट नहीं हुआ था, बस डिक्लेयर हुआ था that I would be the corporal of my college boy. उस टाइम पे I got to lead 200 something cadets in my first attempt, in my first camp. I was
made the camp course senior. So that was the starting point of me, and from that there was no stopping. I tried कि मैं जो भी चीज कर रहा हूँ इन 3 साल में, I do it like an officer or do it like a leader, and that was able, and that really helped me to groom myself. At this, जब मेरा वो ब्रेक चल रहा था 3 साल का 2 साल का मेडिकल ब्रेक, या मुझे सीरियस ही करने सीखा, so उसमें मैंने अपने आप को इस तरीके से ग्रूम रखा था, बट नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं था to as a drugs. बस जीरो डेस्परेशन था कि हाँ खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आर्मी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ होता हो ही जाएगा. अभी आयरॉनिकली ना घर में जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पीछे सिलेक्शन भी हो सकती है, बट ये जो लिखा हुआ है ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ये हर कोई हो सकते मालूम है. आज के टाइम पे एवरी चंदू मंगू इज एन एक्सपर्ट ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटी, एंड आई एम सॉरी टू से even the people who don't possess them, they pretend to possess them. The most important thing is यार ये qualities हैं, ये गुण हैं, ये develop करने पड़ेंगे. It will take some time, right? अभी जैसे इतनी लंबी जर्नी में तन्ने ने एक चीज बताई कि I was thinking how would an officer react. I was in my daily routine, I used to maintain that thing that whether I'll be disciplined सिर्फ दिखाने में या अपनी लाइफ में असलियत में. तो ये जितनी क्वालिटीज है ना, यू हैव टू मेंटेन देम, यू हैव टू बिल्ड देम. ये तुम्हें छू के रट के किसी को कॉपी करके लोग बोलते हैं या फिर वो स्पेशली मैगी खा के नहीं आएंगी तुम्हारे अंदर. ये तुम्हें अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी इन योर डेली रूटीन, इन योर डेली लाइफ, इन योर इंटरेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स, इन योर इंटरेक्शन विद योर फैमिली मेंबर्स. यू हैव टू बिल्ड दीज क्वालिटीज. So again, as I told you, this is a classroom interaction. So we are the students also over here. Those are preparing for SSB. So you are free to ask anything if you want to ask him. And I would like you to ask to him because बहुत सारी queries हैं जो candidates से गुजर. So trust me, the experienced one, 4 times, twice recommended, twice not recommended. So he knows almost every in-depth about SSB and has been preparing. He has been preparing in his mind for last 4 years. So of course it will be a great help for you. और जो ये देख रहे हैं वीडियो, please I want to bring the same opportunity for you. So you can write in comments and वो like share तो तुम लोग करते नहीं हो, but try कर लेना. So please shoot any question. So Tanmay, when you prepare for the CDS, you also taking part in the NCC. So my question is that how do you manage the academics as well as your NCC, and when you prepare for CDS? So I think it's also a serious tough exam when you prepare for, when you go to the each subject in deep. So how do you manage your academics as well as your preparation of CDS? Okay. So to be honest, academics अगर तुम कॉलेज की बात कर रहे हो तो कोई नहीं पढ़ता, वो केवल एग्जाम से पहले पढ़ता है. क्यों मैं झूठ बोलूँ कि मैं ऐसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ता हूँ. सबको पता है 2 दिन पहले पढ़ते हैं एग्जाम से पहले एंड बस पास हो जाते हैं. तो मेरा कोर्स भी यार BA, मतलब ऑल्दो इट्स ऑनर्स कोर्स, बट एंड मेरा कोर्स वाज मोर ऑन प्रैक्टिकल साइड, जहाँ पर असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल ग्राउंड फील्ड वर्क होता था. सो एकेडमिक्स को मैंने कभी इतना वो नहीं लिया सर पे, बिकॉज आई लाइक the course, I like my course to some extent. So first thing that, so academics को मैं साइड रखता था जब तक एग्जाम और असाइनमेंट्स के आते थे. उसके अलावा रही बात NCC की और CDS की, अगर मैं उसको मिलाऊं तो जैसे मैंने अभी प्रीवियसली भी कहा कि मैं NCC को ही एवेन्यू मान रहा था कि हाउ आई प्रिपेयर माई सेल्फ. तो NCC कभी मेरी प्रिपरेशन के बीच में नहीं आई, बिकॉज अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ तो मैं अपने आपको SSB के लिए ग्रूम कर रहा हूँ. सो वहाँ पर मेरा टाइम बच रहा है. एंड आई वॉज अ पैनलिस्ट, आई वॉज अ सीनियर अंडर ऑफिसर ऑफ माई कॉलेज. So what my work was to that I had to coordinate, I had to devise. So I maintained my rapport with my panel that we always used to work, always do to work on collaboratively. And सभी prepare कर रहे थे. So I would say that my panel and my buddies were a great help to that because they understood what is the importance of clearing CDS. And रही बात CDS की, so I will come to this later if we ever discuss about it, that how I prepared for the CDSE exam. But I just in a drugs, I would say that मैंने CDSE रिटर्न के लिए एक ऐसी मिनिमलिस्टिक अप्रोच अपनाई थी कि बस मिनिमम से मैक्सिमम आउटपुट आए. सो उस वजह से I was able to save much of my time. So
through that I was able to work on myself in a threads कि मैंने सब एक तरह से मैनेज करके रखा हुआ था. एग्जाम टाइम पे मैं एनसीसी को साइड करता था. सीडीएस वाज ऑलवेज माय फर्स्ट प्रायोरिटी. एनसीसी और एकेडमिक्स ये दोनों रोल ऑन करते थे कि हाँ अगर एनसीसी काम है, एनसीसी का काम है, एकेडमिक्स की जरूरत है तो एनसीसी का काम करूंगा. एनसीसी की जरूरत नहीं है, एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट तो एकेडमिक्स पे करूंगा. बट सीडीएस वाज ऑलवेज स्ट्रीमलाइन. वो हमेशा मेरे पिन पॉइंट फोकस पे था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. ऑल्दो मुझे ज्यादा मतलब I'm not bragging about something, but मैंने ज्यादा फोकस रिटर्न पे नहीं करा सीडीएस के. I was more into grooming myself as a person. सीडीएस का मुझे ये था कि हाँ निकाल ही लेंगे यूपीएससी में, मतलब नॉट उसको लेट डाउन नहीं कर रहा हूँ यूपीएससी को, बट आई वाज लाइक कि हाँ निकल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, 10 अप्रोच लगा दे छोटी सी वो हो जाएगा. सो अब वो हो भी गया. ऑल्दो अभी हम जब लेटर डिस्कस करेंगे उस पर तो बताऊंगा कि वो फेल भी कैसे हो सकता है बहुत गंदे तरीके से. सो वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट अभी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो तीनों हो गए थे. प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा बेसिकली, जो उस टाइम पे नीड है उसको प्रायोरिटाइज करो. सिंपल. सो भाई का सीडीएस नहीं एफकेट भी हो गया. देखो यार, आई ऑलवेज ट्राई टू टेल यू व्हाटएवर योर ड्रीम्स आर, जो भी तुम्हारे एम्बिशंस हैं, they always has to be in the back of your mind. Whatever actions, whatever things you are doing in your daily life, that thing should constantly remind you कि यार मेरा perspective, मेरा aim ये है जो मुझे पाना है. Once you have this continuous reminder in your head, now you will improve on everything. And once you will forget, nobody can save you. Okay, it's not all about English. It is more about aptitude in life. English is just a skill which you can learn. हम लोग सब अंग्रेज पैदा नहीं हुए भाई. I'm a Jat from Meerut. Nobody even believe that I'm a Jat from Meerut because I speak in English. But there are a lot of my coursemate who are commanding even they cannot speak so well, but they are still commanding. And now they are commanding. At that time when they were going for SSC, they were अभी की language बोलूँ they were pathetic in English, not as a person. Okay. So ask anything. When we talk about repeaters, everyone says that SSB expecting more from you. Then what are the increased expectations from repeaters? Expecting more from you in the sense what I believe is that उनको ये एक चीज है कि तुम एक टेस्ट के लिए एक बार ऑलरेडी अपीयर हो चुके हो. सो अगर आप एक फ्रेशर से कंपेयर करें जो एसएसबी में स्क्रीन होकर पहली बार घुसा है अंदर, उसके मुकाबले तुम्हें ज्यादा पता है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, तो यू विल बी मोर मेंटली प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम एज अ रिपीटर. तुम्हें पहले से पता है कि यहाँ पर ये चीजें होती है, तो यू विल बी. अब अगर तुम इतने ही जीलस हो, इतने ही डिटरमाइंड इंसान हो, सो एसएसबी डेफिनेटली वुड एक्सपेक्ट और एनीवन इन द वर्ल्ड वुड एक्सपेक्ट कि हाँ अगर इसे पहले से पता है तो ये और अच्छा प्रिपेयर करके आया होगा. सो अगर तुम्हारे लिए बार रेज हो रहा है तो वो बस मेरे ख्याल से तो यही चेक कर रहे हैं कि क्या ये बंदा इतना डिटरमाइंड है. क्योंकि अगर तुम एक रिपीटर हो और तुम फ्रेशर की तरह मुंह खा के आ गए अपनी बार भी, तो फिर तो कमी तुम में ही है ना, बिकॉज तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो. अगर तुम्हें ऑलरेडी प्रोसीजर पता है, अगर तुम फिर भी अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, सो फिर वो तुम्हारी कमी है. एंड एसएसबी आई थिंक बस वही एक बात सेट करती है जो मुझे लगता है ऐसा रिपीटर कि इसको पहले से पता है, इसका माइंडसेट पहले से बना है कि हाँ अब ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, यहाँ पर ऐसे करना है, वैसे करना है. अगर ये पिछली बार भी यही करके रिजेक्ट हुआ है तो इस बार इसने क्या नया करा होगा. उसके लिए तो बार रेस करना पड़ेगा उन्हें रिपीटर्स के लिए कि उन्हें जानना है कि हाउ यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ. एंड अगर मैं मतलब ऐसा आप इनसाइट आप जाओगे तो कुछ ये मेरा पर्सपेक्टिव था. देखो ऐसा है कि रिपीटर एक टैग है, जो बंदा सेलेक्ट हुआ है ना वो भी रिपीटर कैटेगरी में आता है. फर्स्ट टाइम ही वाज रिकमेंडेड, नेक्स्ट टाइम देयर वर एक्सपेक्टेशंस दैट ही विल डू बेटर देन प्रीवियस टाइम, है ना. तो ही इज आल्सो being treated as a repeater only, whether you are selected or rejected. Conference out मतलब कि you had gone through that experience and somehow you could not make it or you made it. So you are in both the cases you are being treated in the same manner. Yeah, recommended और conference out में कोई difference नहीं होगा वहाँ पर testing में. There is no difference. बस हाँ एक बार सेट हो गया कि इस बंदे को पहले से एसएसबी के बारे में पता है, ये देख चुके हैं एसएसबी irrespective of the result. सो वो बस एक बार सेट करते हैं कि यार अब इसने क्या एक्स्ट्रा कुछ नया करा है अपने लिए. दैट्स द ओनली थिंग. अच्छा तन्मय, तो यार तुम्हारे 4 इंटरव्यू हो गए, मतलब ऐसे
4 इंटरव्यू में वो जगत फेमस क्वेश्चन कितनी बार आया तो वेरी गुड और आया तो उन्होंने बोला क्योंकि है तो तुम्हारी नहीं पता नहीं, आप तो मेरी शक्ल उनको लगता नहीं है देखने की इसकी होगी नहीं, बट लकीली आज तक नहीं पूछा गया है 5 इंटरव्यू आज तक नहीं पूछा गया अभी ऐसा। हाँ बट ये फ्रेंड्स पे एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा गया था ऑफ कोर्स, और वो इसी वाले इंटरव्यू में पूछा था। तो ही आज मी कि तुम अपने दोस्तों के नाम बताओ फ्रॉम स्कूल टाइम टू कॉलेज टाइम जो बने। सो अब मैंने कहा इतने सारे नाम बताऊंगा कि पूछने बैठ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने हर अपनी क्लास से 2-2 के नाम ले दिए, लाइक क्लास 10 से 2 बता दिए, 12 से 2 बता दिए, कॉलेज से 2 बता दिए, एनसीसी से 2 बता दिए। सो मैंने 8 बता दिए ऐसे। तो बोलता है अब कोइंसिडेंटली जो सारे मेरे दोस्त हैं वो एक ही रिलीजन के हैं, वो हिंदू है, ठीक है। बट अब दोस्त बनाने में कौन सोचता है, या बन गए तो बन गए। सो द इंटरव्यू एकदम पूछता है मुझसे कि ये सारे तन्ने टेल मी वन थिंग, ऑल द नेम्स यू हैव टेकन दे ऑल बिलोंग टू द सेम सेक्ट, दे ऑल बिलोंग टू सेम कम्युनिटी एंड रिलीजन, व्हाई इज दैट? सो अब मैंने तो कभी सोचा नहीं था ये, अब मैं भी इसके सामने पहली बार सोच रहा हूँ ये बैठ के ये क्या पूछ लिया इसने। सो मैंने कहा अब द बॉल इज इन माय कोर्ट, मैंने कहा कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा, ऐसे तो बोल नहीं सकता कि सर मुझे क्या पता, मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते तुम डायरेक्टली। सो आई हिट द बॉल बैक इन हिज ओन कोर्ट ओनली। आई सिंपली सेड सर मैंने कभी दोस्त बनाने के सोचा नहीं है, जस्ट दैट यू हैव मेंशनड इट राइट नाउ, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम थिंकिंग लाइक दिस। सो अब वो बॉल उसके पास चली गई है वापस, बिकॉज़ ही इज द बैड वन नाउ, कि उसने कैसे सोचा कि सेम तरह के दोस्त है, मैंने तो कभी नहीं सोचा है। सो बस ऐसे मुझे फ्लिप करना पड़ गया, लेकिन कभी गर्लफ्रेंड वगैरह का कोई क्वेश्चन आया नहीं है। चलो अच्छा है नहीं आया, वरना फ्लिप नहीं कर पाते। तो पॉइंट ये है यार कि एक्चुअली दिस इज very questions can be risen from anything. अब this is very idiotic kind of a question कि यार तुम्हारे सारे फ्रेंड एक ही सेट के, obviously यार जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है वहाँ पे there are less people from other caste. मैंने कोई एग्जांपल पहले कोई बोला ऐसा नहीं, नहीं तो बात से करूँगा। तो ये बहुत सही सिंपल आंसर यही होता है कि फ्रेंड बनाने से पहले कौन ही सोचता है कि यार ये हिंदू है, मुस्लिम है, इससे दोस्ती करनी है नहीं करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी होता है कि हर रिलीजन के दोस्तों में you just click and you make friend. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके लोग रट्टा मारने पड़े हैं ऐसे है ना, ऐसे भी do you have any girlfriend or not? Why your friends are all males not female and vice versa. तो यार कितना रटोगे भाई, हर चीज रटते जाओगे ना वहाँ पे। उनको है भाई रीजनिंग एबिलिटी, कहीं पे पावर ऑफ नॉलेज तो है नहीं, अगर रट्टा वेकेशन रखवाओ तो फिर वो दिखाएंगे ये है भी रेडी रटे पड़े थे। एसएसबी को बना दिया है एकदम कांस्टेबल भर्ती एकदम कि भैया रट के जाओ पास हो जाओ, तो रटन विद्या काम नहीं आएगी, यहाँ पे काम आएगा। लीव में लास्ट इनके कैसे डेली अपने आप को रिमाइंड कराया व्हाट यू वांट इन लाइफ, वो लंबा प्रोसेस, कैसे अपने आप को रिमाइंड कराया, कैसे अपने आप को मोल्ड करा, हाउ टू बिहेव लाइक एन ऑफिसर, मतलब ये किस टर्म बोल दिया कि आई बिहेव लाइक एन ऑफिसर, बट हाउ, क्या उसमें कंपोनेंट थे कि तुमने गाली गलौज करी दोस्तों के साथ या नहीं करी, तुमने आर्गुमेंट किया है नहीं किया, जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई काम बताया वो तुमने टाल दिया है किया। तो these were the basic questions what you should take care of, not ये कि do you have any girlfriend? वो ये यार कि कुछ भी मिथ्या बना दी है और वो बिक रही है, तो आज नहीं अंदर कुछ नहीं। Then मैं as you are a repeater this time, so हमने ये सुना है ज़्यादातर कि जो रिपीटर्स होते हैं वो फिश मार्केट जीडी में पैदा हो जाता है, तो आपकी क्या अप्रोच थी और आपने कैसे टैकल किया उस जीडी में अपने आप को पॉइंट रखने के लिए? रिपीटर्स फिश मार्केट नहीं बनाते, रिपीटर्स इज द रॉन्ग वर्ड, डेस्परेट्स बनाते हैं। वो फ्रेशर भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि रिपीटर्स फिश मार्केट बनाते हैं। हाँ लेकिन टेंडेंसी रिपीटर्स की ये हो जाती है बिकॉज़ जब वो बार-बार रिपीट करते हैं तो उन्हें और ज्यादा डेस्परेट होते हैं, और उनको अगर सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, जो मुझे मिल गई थी एज अ रिपीटर, अगर उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है तो यही सोचेंगे बस बोलने से सिलेक्ट होते हैं, लेकिन क्या तुम बोल रहे हो और कब बोल रहे हो उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सो मैंने बस ये चीज ध्यान रखी थी, लाइक मैंने अपनी एक रेपो बना ली थी अपने ग्रुप के साथ, वो सर जैसे सर सिखाते हैं वैसे ही, मतलब सिखाते क्या, वो नॉर्मल मेरा बिहेवियर भी वही है कि अगर मैं कहीं अनजान 20 जगह पे खड़ा हूँ तो मैं किसी ना किसी से बात कर रहा हूँ भाई, अकेला नहीं खड़ा रहूँगा। सो बस मैंने वही नॉर्मल इंटरेक्शन रखा। सो
बाय द एंड जब तक हम पीपीटी डिस्कशन के लिए पहुंचे 6 से 7 जने को जानते थे कि हाँ ये बंदा है, मैं उन्हें जानता हूँ कि हाँ ये बंदा है। अब तो पीपीटी डिस्कशन होता है, ड्रामा ऑफ कोर्स बनता है, शुरू होते ही बन जाता है। सो व्हाट आई डिड वाज वही सेम अप्रोच कि कहीं पहले बोलता हूँ कि मतलब एकदम ना यू विल हैव, अब अगर 10 जने चिल्ला रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि चिल्लाएंगे शुरुआत होते ही, तुम पहले चिल्ला के उन्हें चुप कर दो सीधा सीधा कि जेंटलमैन एज वी हैव ऑल डिस्कस, सबने ये कर लिया, ये पिक्चर्स आइडिया है वो सब, उस पे हम पूरी स्टोरी बना देंगे, वो तुमने क्लास में सीखे होंगे। दैट्स कॉल्ड गाइडिंग देम इन द राइट डायरेक्शन। बस उन्हें गाइड करके अब उन्हें चिल्लाना दो, एटलीस्ट वो चिल्ला जो रहे होंगे ना वो एक पर्पसफुल पाथ पे जा रहा है। एंड जहां तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये दोबारा घसड़ के उस पे पहुंच रहे हैं, ये भी बचने वाले दोबारा से, तो फिर तुम एकदम से कूद जाओ बीच में कि जेंटलमैन, बस एक बार बोलना होता है, बिकॉज ये सबकी हालत खराब हो रखी होती है बस ये चीज बोलने में कि शांत हो जाओ, ये करके बोल लो, वी आर इन द राइट पाथ, ठीक है। बस अगर तुमने ये बोल दिया तो ग्रुप मेंबर्स विल शट अप ऑटोमेटिकली, बिकॉज अब वो ये है कि ये कौन ब्रेव हार्ट आ गया जो 3 ऑफिसर के सामने ये बोल रहा है खड़ा होके, हमें बता रहा है करना क्या है, ठीक है। सो जैसे वो चुप होते तो अगेन एक पॉइंट पे को वो फिर चालू हो जाएंगे। एंड मोस्टली जब ज्यादा वो होती है, जब ज्यादा मतलब इधर उधर मतलब हौच पौच होता है तो फिर जो एसएसआर होता है वो ग्रुप सब डिवाइड करते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। एंड बाकी हाँ मतलब फिर मैंने इसी तरीके से टैकल करा था, मैंने ज्यादा घुसा नहीं उनमें, बट आई मेड श्योर कि वो इधर उधर ना भागे, बीच बीच में बोल दिया एक आध बार, बस काम करो, इतना काफी था। फर्स्ट लीड दे दी, योर प्लेस इज सिक्योर। हमने देखा है कि जीटीओ में बहुत सारे बंदे आगे पीछे लगे रहते हैं, तो उसमें किस टाइप की अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए? यार जीटीओ का मतलब ही ग्रुप टास्क है, तो ग्रुप के साथ ही चलना पड़ेगा। सो बस अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पीछे बंदे छूट रहे हैं या फिर तुमसे आगे ज़्यादा जा रहा है, आगे वालों को तो क्या ही करोगे, क्या कुछ कर नहीं सकते हो, पीछे वालों को अपने साथ ले लो, फिर उन्हें बोलो कि हाँ जेंटलमैन लेट्स वेट, वी हैव आवर बडीज बिहाइंड। सो बस ऐसे बोल के आगे कंटिन्यू करो भी। जीटीओ का मुझे लगता है कि बीइंग एज नॉर्मल एज पॉसिबल इज द की टू जीटीओ। बस अपना दिमाग चलाओ और कुछ नहीं, वहाँ पर ज़्यादा वो नहीं करना। नहीं ग्रुप डायनामिक्स अगर तुम्हें असली में है, दिखाने से कुछ नहीं होगा, दिखाने वाले वहाँ पर 29 होते हैं लेकिन सेलेक्ट होगा जिसमें एक्चुअल में होते हैं। अब दिखाने के लिए तुम बोल दो जेंटलमैन यू हैव ब्रेकन द रूल, लेट्स रिपीट इट, जेंटलमैन व्हाई आर यू लीविंग देम बिहाइंड, तुम चिल्ला चिल्ला के उन्हें सुना रहे हो, सो दैट्स नॉट द की। अगर तुम ग्रुप पर्सन हो एंड तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो बडी जो है वो ओवर एंथुसियास्टिक है, तो तुम पीछे वालों को अपने साथ ले लो, उनसे बात उनको बोल दो कि यार आई एम कमिंग, लेट मी हेल्प यू, ठीक है, उनको साथ लो फिर चलो। सो दैट्स द ओनली थिंग। जीटीओ में जितना नेचुरल रहोगे उतना सही है, दिखाने की कोशिश मत करना। देखो यार, what I have seen in video is everybody wants to act like super commando group, but यार तुम ये सोचो जैसे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हो गया या फिर वीडियो में स्ट्रक्चर्स पे भी आप काम कर रहे हो, it is important for you, everybody will take care of the people those who are ahead, but nobody takes care of the people those who are left behind. The correct leader is who is taking care of everybody equally. वो पीछे वालों को भी बूस्ट अप कर रहा है, उनका मोरल दे, चलो चलो आई बी देयर विद यू, उन्हें भी हेल्प कर रहा है और आगे वालों को भी बोल रहा है कि लेट्स गो टुगेदर। ये कमराडरी एक वर्ड है टेकन फ्रॉम द रशियन लैंग्वेज। तो कमराडरी का मतलब ये होता है कि व्हाटएवर यू आर डूइंग इज फॉर द ग्रुप एंड विद द ग्रुप। अब होता जाए कि बच्चे बचपन से रहे इंडिविजुअल, ग्रुप को मानते हैं अपना एनिमी कि ये मुझे काट देगा, इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा अंग्रेज है, मैं तो इतनी बढ़िया अंग्रेज हूँ। जब तुम जाओगे दिमाग में ये सारी हीन भावनाएं लेके, तो हाउ वुड यू बी एबल टू वर्क विद द ग्रुप? तो जीटीओ का पर्पस तो बेकार हो गया ना यार। ही इज द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, यानी तुम्हारा रोल इन द ग्रुप एंड ग्रुप का रोल एज ए ग्रुप, और वो पर्पस फेल हो गया। तो this is very important to keep it in mind that I have to work with them, क्योंकि पूरी throughout your life in army or air force or navy you have to work with certain people. They might have a different temperament, maybe they have different beliefs, but वो उनकी personal है। When it comes to professional thing, तो you have to work with them, and it is very easy when you do not have some kind of stigma already in your head कि मैं ऐसा हूँ, सब ऐसे होंगे, कोई नहीं हुआ ऐसा भाई, तुमको सबके हिसाब से बोलो। That is only the factor 2 and factor 3. Okay. So, is there any
selected in SSB? Yeah, getting selected in SSB का तो नहीं पता, but what I adopted to enhance my qualities as a person, वो मैं बता सकता हूँ. SSB का तो पता नहीं क्योंकि वहाँ पर परफॉर्मेंस ही डिसाइड करती है. But yeah, so कुछ चीज़ें जैसे सर अभी talked about social adaptability कि अडेप्ट करना पड़ता है into mold. So और मैं मतलब इतना अडेप्टेबल था, मतलब इतना अडेप्ट करता नहीं था इजीली. लाइक 12th के बाद 12th तक भी कॉलेज में भी, बिकॉज 3 साल में कोविड में घर पे भी रहे. सो आई हैड टू वर्क ऑन दिस, स्पेशली जब मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली. सो उसमें मुझे मेरा प्रेशर ही ये था कि आई हैव टू अडेप्ट. और बहुत झगड़े भी करे हैं मैंने अपने बडीज के साथ कि तू ये ऐसा नहीं क्यों कर रहा है, कैसे क्यों कर रहा है. फिर आई हैड टू थिंक अबाउट इट. तो that is one thing, so I had to improve that thing. And जो सर ने तरीका बताया था that in the starting days what you do is before sleeping at night you make a diary of your own and you write what you did good, what you did bad. So आप around अगर 1-1.5 हफ्ता उसको पैटर्न को फॉलो करोगे, so and you see, अगर आप फिर उसके बाद असेस करोगे तो you will see a pattern कि आपकी ये कमियां हैं and ये आपकी स्ट्रेंथ्स. सो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करना शुरू कर सकते हो. एंड जब मुझे मेरी पता चल गई कि हाँ यार मैं सोशली अडेप्टेबल, मतलब अडेप्ट नहीं करता हूँ इजीली, एंड आई हैव गॉट सम टेम्पर इश्यूज स्पेशली इन द प्रोफेशनल डोमेन. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम माय सेल्फ. और अभी भी है, अगर मुझे लग रहा है कि भाई नहीं हो रहा है काम तो मैं सुना दूंगा. मैंने एसएसबी में भी करा है, मैंने सुनाया था. तो बट लेकिन आई एम वर्किंग ऑन दैट. अब उसके लिए बस एक चीज करी थी मैंने जब मैं प्रैक्टिस करता था, मतलब नॉट इन कोचिंग बट वैसे ही पर्सनल लाइफ. आई जस्ट यूज्ड टू डू वन थिंग. जब भी मैं कोई एक्शन लेने वाला हूँ या फिर मेरे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है या फिर मैं कुछ बोलने भी वाला हूँ, सो आई यूज्ड टू पॉज फॉर अ सेकंड एंड आई यूज्ड टू थिंक कि क्या ये ऐसे करना चाहिए या फिर कोई इसका अल्टरनेटिव तरीका भी है क्या. अगर नहीं है तो फिर तो भाई करो, फिर बिकॉज यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट. लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं इसका अल्टरनेटिव तो बेटर सॉल्यूशन है, तो आई यूज्ड टू पॉज फॉर दैट एंड देन आई यूज्ड टू टेक अनदर अल्टरनेटिव मेथड. सो इसके थ्रू मैंने अपने आप को काफी इंप्रूव करा था. तो दैट इज वन वे एंड वन एग्जांपल ऑफ इट दैट हाउ आई वर्क ऑन माय सेल्फ, व्हिच यू कैन ट्राई एज वेल. एक यार जब वो होता है ना कि रिंकू सिंह की तरह हर बॉल पे तुम छक्का मार दो, 5 ओवर पे छक्के मार के जिता दो टीम को, तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी गुड बिकॉज यू आर इन द रिदम ऑफ हिटिंग अ सिक्स and every bloody ball was not bad but you were able to hit a six on that, है ना. तो तुम्हारा वो रिदम टूटा है, वो रिदम तुम्हारा टूटा है 2 बार. और पहली बॉल पे छक्का, उसके बाद दोनों बॉल पे दोनों मैच में आउट हुए और फिर उसके बाद भी छक्का. तो ये जो मैंने अक्सर देखा है कि एक बार आदमी गिर जाता, उठता है और गिरता है, तो उठने के बारे में कम सोचता है, गिरने के बारे में ज़्यादा सोचता है. तो ऑब्वियसली तुझे भी वही सोचा होगा यार कि मैं गिर गया हूँ तो अब अगली बार जा रहा हूँ लड़ने तो फिर गिरूंगा. तो कुछ दिमाग में मील टाइम जैसे पीपीडीटी सबसे बड़ा डर है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसका डर तेरे में भी हो. तो उस टाइम पे जो चेन ऑफ थॉट थे अगर वो बता पाएगा तो इट विल बी मच बेटर फॉर दी स्टूडेंट्स के अपना क्या टेम्परामेंट है. हाँ शायद. सो फर्स्ट एक्सपीरियंस, पहली बार मैं रिकमेंड हुआ, जब पता भी नहीं है कि रिकमेंड होने का मतलब पता होता क्या है, मुझे ये भी नहीं पता एग्जैक्ट, मतलब उसकी वैल्यू नहीं पता है रिकमेंड होने की जब मैं रिकमेंड हुआ था. और उसके बाद हम तो 7 क्लास वन में थे कि हाँ भाई फौज को चाहिए ही हम तो, मतलब. और फिर मेडिकल या तो कैजुअल भी हो गए थोड़े से. सो हम एसएसबी गए एंड वहाँ पर जाके बहुत छोटी चीज पे रिजेक्ट हो गए, वो कमांडो वाली चीज हुए जीटीओ में. सो एकदम से रियलिटी हिट कर दिया कि अब क्या होता है ना कि व्हेन यू क्लियर समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं पता, तुम बस चले गए हो गया और फिर तुम अगली बार ना कर पाओ, तुम गए सेलेक्ट होने के लिए. सो ऐसा लगता है कि यार पिछली बार तो क्या मतलब नहीं हो गया, क्या मैं मूवी ऑफिसर बनने लगा है. तो एक और बहुत गंदा स्ट्राइक करा था मुझे उस टाइम पे जब मैं रिजेक्ट हुआ था. एंड प्लस ये होता है ना कि व्हेन यू गेट सेलेक्टेड बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली जब तुम सेलेक्ट हो जाओ और तुम रिजेक्ट हो जाओ, तो अब बाहर वाले भी ये बोलने लगते हैं कि लग रहा है पहली बार इस तुक्के में हुआ था. फिर ना कमियां भी निकालने लगते हैं, लाइक पहली बार सेलेक्ट हो जाओ फिर तो ऐसे बोलेंगे हाँ भाई तो बना ही पहुंच गए, तो है ऑफिसर. और तो फिर रिजेक्ट हो जाओ फिर ऐसे कमियां बतानी शुरू करेंगे कि तन्ने में ये कमी तो है, देखो ये कमी है, इसको काम करना चाहिए. एंड ये और कोई नहीं होगा, ये तुम्हारे बहुत आसपास वाले लोग होंगे. तो वो एक फेज आया था फर्स्ट सेकंड एसएसबी के बाद कि एक तो मुझे खुद लग रहा है कि तुक्के में तो नहीं हो गया, अब वाला भी पॉसिबिलिटी नहीं कि फियर ऑफ हाइट्स का निकाल रहे हैं मुझे कि मैं कमांडो वक्त पे लड़ने आ गया तो निकाल दिया. सो अब मुझे ये सेकंड पार्ट्स आने लगे
लेकिन फिर अब मैंने कहा अब मुझमें चुल तो थी, मैंने कहा भाई रिजेक्ट कैसे हो गए जब सेलेक्ट हुए हैं तो अब ये ना रिजेक्शन मेरा रीजन बना कि मैं इसमें और ड्राइव हो गया कि मुझे भी करना ही है, ईगो हर्ट हो गया बेसिकली। मैंने कहा फियर ऑफ हाइट्स से निकाला है, मैंने कहा चलो बंदी जंप करके आऊंगा। सो आई प्लान्ड आउट, मैंने कहा कहां पर है बंदी जंप, मैंने कहा ऋषिकेश में है, सो इट इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट। मैंने कहा ठीक है तो वहीं जाएंगे अब। सो मैं गया हूं बस, तो हमें बंदी जंप करी है, मैंने कहा अब उधर गया फियर ऑफ हाइट्स, अब देखते हैं कौन रोकता है मुझे रिकमेंड होने से। सो हाँ, और जब मैं कूदा मुझे लगा कि हाँ मेरे सारे पेयर्स गए, मैंने फिर वहां ऋषिकेश में क्लिप जंप करा पानी में, मैंने कहा भाई दोबारा कूदना है बिना गॉड के, मैंने फिर भी करा। तो मैंने कहा अब ये फियर निकल गया ना, इसी वजह से निकाला था ना उसने मुझे, ठीक है खत्म बात, अब सेलेक्ट हो गए दोबारा से, फिर गए फिर रिजेक्ट हुए। चलो फिर तो रीजन नहीं था, अब क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मुझे कौन रोक लेगा रिकमेंड होने से, तो प्रैक्टिस भी नहीं करोगे फिर। तो मैं कर भी नहीं रहा था बिकॉज ये था कि मेडिकल ईयर पे हो चुके हैं, कहीं फायदा है जाएंगे, वो तो जाना ही है रिकमेंड, छोटी चीज में निकले तो इसलिए बात। तो अभी डेस्परेशन प्लस ओवर कॉन्फिडेंस ये सब मिलके जो खिचड़ी पकी थी उसने मुझे फिर रिजेक्ट करवाया, क्योंकि मैं सीरियस भी नहीं था, मैंने काम भी नहीं करा था खुद पे टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ मेरी ईगो हर्ट हुई थी कि यार फियर ऑफ हाइट्स मुझे कैसे हो सकता है, तो मैंने बस उस पे काम करा था। लेकिन फिर वो डेस्परेशन कैसे बन गया, ओवर कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ हम तो भले ही पहुंच के लिए, तो वो चीज थी कि जैसे होता है ना लक्ष्य मूवी में दिखा दिया, गंगे सक्सेना में दिखा दिया कि तो भले ही पहुंच के लिए हो एसएसबी में एक्सीलेंट कर लेगी, ऐसा नहीं होता है भाई, एसएसबी इज वेरी प्रोफेशनल। मुझे ये रियलाइज हुआ थर्ड एसएसबी में कि तुम कोई वो उनके दामाद नहीं होती, तुम्हें बस वो आके बैठा लेंगे, तुम्हें दिखाना पड़ेगा तुम क्यों सेलेक्ट, और तुम हर बार दिखाना पड़ेगा। सो ये चीज मुझे रियलाइज करी, उसके बाद फिर जब भी मेरा पहला अटेम्प्ट आया सो आई वर्कड ऑन माय सेल्फ अगेन। लेकिन हाँ ये एक छोटा सा फेज आया था 1 महीने का, जिसमें मतलब थर्ड एसएसबी में ये फेज चला था कि भाई कैसे होता है, कैसे हो सकता है कि तुम एक बार सेलेक्ट हो जाओ, मेरी पर्सनैलिटी कैसे बदल सकती है, क्या मेरा तुक्का लगा पिछली बार जब वो हो गया। सो बस वो तुक्के वाला फेज निकालना था और फिर वो निकल गया जब रिकमेंड हो गए। पीपीटीटी और स्किनिंग का मुझे कभी डर था नहीं, टू बी ऑनेस्ट, पहली बार था, लेकिन वो ये अगर तुम एक बार क्लियर कर लो तो फिर वो डर खत्म हो जाता है, व्हेन यू नो कि हाँ ये ऐसे हो जाता है तो फिर तो बिल्कुल ही डर खत्म हो जाता है। सो 5 एसएसबी आई हैव बीन टू, कभी स्क्रीन आउट नहीं हुआ क्योंकि कभी डर ही नहीं था स्क्रीन आउट होने का। जीटीओ ने सेकंड एसएसबी में डर बैठाया और थर्ड एसएसबी में वो फिर एक्टिवेट हुआ डर, उसने और खत्म करवाया। इंटरव्यू भी जब बिना प्रिपरेशन के जाऊंगा, आई डोंट नो व्हाट आई एम हियर फॉर, सो फिर तो इंटरव्यू में रिजेक्ट होना था। सो आई देन मेनली फोकस्ड ऑन दैट थिंग बिकॉज़ साइकोलॉजी में मुझे पता था कि यार अगर जब तक मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा तब तक मेरी साइकोलॉजी सही है, अच्छा होना हो। और रही बात इंटरव्यू की, तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस की, जो तुम्हें पता है अपने बारे में तुम्हें उसको बस रिफ्रेम करना है कि हाउ यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ। जीटीओ में मुझे थोड़ा लग रहा था कि हां मैं डाइसी भी था, एंड मूवमेंट तक आईएम जाने से पहले, आईएमएस भी जाने से पहले भी मैं डाइसी था कि अब जीटीओ में फकअप ना हो जाए, बिकॉज़ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने तब भी नहीं करी थी। लेकिन हां अब मैंने अपने को ब्रश अप कर लिया था कि हां ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उस फिर मैं अपने को रेडी करा, फिर आई वाज अगेन एबल टू गेट इट। सो दैट वाज द ओनली फेज जहां पर मुझे थोड़ा लगा था लेट डाउन कि ये हो गया। सो दैट्स ऑल। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आई मेनी स्टूडेंट्स अभी तो दे आर सर्विंग, तो नाम नहीं लूँगा कि ही गॉट रिकमेंडेड इन डेज अवे। ऐसा नहीं था कि 8वें अटेम्प्ट तक उसे ये नहीं मालूम था जीटीओ क्या होता है, इंटरव्यू में क्या कुछ है और साइकोलॉजी में क्या करना है। टिल थर्ड अटेम्प्ट ही न्यू कि यार ही न्यू एवरीथिंग इन डिटेल कि ये होना है, ये बनाना है, सपोर्ट और सब मालूम। मालूम क्या होता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंट खुला खेलने का जब हुआ, जब उसका आगे उससे पहले वो डर डर के खेल रहा था बैक फुट पे, वो फ्रंट फुट पे खेला आखिरी अटेम्प्ट में। उसने सोच ही लिया था कि यार अब तो होना ही नहीं है, मैंने सारी अटकलें ट्राई कर ली, इस बार जो मुझे करना है वही करूँगा। नॉलेज निकल के तब आई व्हेन दैट डेस्परेशन फैक्टर वाज गॉन। तो the biggest thing which is stopping you from getting succeed is, in my opinion, desperation and fear. Fear is also one thing very important जो fuck up करवाती है बहुत गंदे गंदे। लाइक तुम जीटीओ के सामने डर रहे हो, इंटरव्यूअर के सामने डर रहे हो, क्या पूछ लेगा, क्या पूछ लिया। सो डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेस्परेशन से ज़्यादा डर भी कई बार fuck up करवाएगा और बहुत अच्छे fuck up करवाता है, तुम्हें बाद में रियलाइज होता है क्या कर दिया। एक बंदा मेरे साथ हाँ मतलब अब वो देखेगा तो वो पहचान लेगा, वो माने मेरा दोस्त है, उसका एएफएसबी इंटरव्यू चल रहा है एंड वो पता नहीं कौन सी ख्यालों में कौन से ऐसे पता नहीं क्या हुआ उससे, और वो बिल्कुल एयरफोर्स वाला ही बनता है कि उसे एयरफोर्स में जाना है, तो हिज नॉलेज, हिज लेवल ऑफ नॉलेज वाज
वे हायर अबाउट एयरफोर्स, उसके पापा भी एयरफोर्स में है। सो उससे इंटरव्यूअर ने बस ये पूछा कि अच्छा, उसने लोगो पूछा एयरफोर्स का, उससे सब बता दिया। उसने तो बोलता है कि जब भी कोई गेट होता है एयरफोर्स स्टेशन का तो लोगों के नीचे क्या लिखा होता है, अब आई थिंक सर्विस फर्स्ट ऐसा कुछ लिखा होता है। सो वो बोलता है पता नहीं क्या ही खोया भाई, डर गया क्या हुआ, बोलता है सर मिशन इम्पॉसिबल। सो भाई सुन रहा है तो सॉरी, बट हाँ एग्जांपल देना पड़ेगा, डर क्या करता है। बट हाँ, तो फिर उसको याद आया क्या बोल दिया है, तो इंटरव्यू बोलते हैं यार इंडियन एयरफोर्स इज अ पार्ट ऑफ अ मूवी स्क्रिप्ट, ओके ठीक है। सो बोलता है नो सर दैट इज, फिर उसने करंट बताया। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड और फियर, ये मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए, और डेस्परेशन तो खैर होनी चाहिए। अभी तूने एक सीक्रेट लीक किया है ना, तो दूसरा उन्होंने का मैं सीक्रेट लीक करूंगा, वो भी समझ जाएगा। तो भाई एक मेरे स्टूडेंट था, वो कमांड टास्क में गया और कमांड टास्क में उससे बोला गया कि कॉल 2 हेल्पर्स। उसने बोला चेस्ट नंबर 40 है, चेस्ट नंबर 31। तो जीटीओ ने उसे बोला कि अरे शॉर्ट चेस्ट नंबर 31। बोला यस सर, शॉर्ट चेस्ट नंबर 31। तो उसने पूछा कि व्हाई 31? कि सर ही इज वेरी गुड इन मेकिंग नॉट्स, ही मेक्स वेरी गुड नॉट्स, सो ही कैन हेल्प यू आउट इन कमांड टास्क। अब उसने ये बोल दिया, उसके बाद उसने नीचे देखा तो ही हिमसेल्फ वाज चेस्ट नंबर 31, ही हिमसेल्फ वाज चेस्ट नंबर 31। और फिर वो मुझसे बोला सर थोड़ी सी गलती हो गई यार, तुम सोचो इतने नॉर्थ लॉस कंपल हो गए तुम वहाँ पे, इतना प्रेशर में आ गए हो, तुम अपनी चेस्ट नंबर को बुला रहे हो अपने आप को हेल्प करने के लिए, और फिर कह रहे हो सर थोड़ी सी गलती हो गई। तो यू नो व्हाई डू यू टेक सो मच प्रेशर यार? मेरी ये समझ में नहीं आता है कि तुम, अब चलो मैं अपनी बात करता हूँ, और जगह की बात तो नहीं करता। आई टीच यू फॉर 2 months, जीटीओ कम से कम 3 बार हो जाता है, इंटरव्यूअर एक बंदे का 4 बार हो ही जाता है, ज्यादा तो नहीं है, 4 बार हो ही जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट 250-300 पिक्चर्स तुम कर लेते हो, उसके बाद भी यू आर अफ्रेड, तो यार फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। तो ये दिमाग डर दिमाग में है कि अपने चेस्ट नंबर बुला रहे हैं, सर चेस्ट नंबर 31, मतलब एक मेरा ही क्लोन बनेगा अभी, और फिर वो क्लोन आके नोट बनाएगा मेरे कमांड टास्क में। हाउ कैन यू सो नोट द रशिया, कैसे नोट करो सो करते हैं? चलो आस्क एनीथिंग। तन्मय, जैसा कि भी आपने बताया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें स्क्रीनिंग में, तो जब नरेशन के वक्त जब इंडिविजुअल बंदे अपनी स्टोरी नरेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेशर इतना बड़ा रहता है कि दूसरे की क्या स्टोरी है याद ही नहीं रहती। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने ही में फंबल करने लगते हैं अपनी स्टोरी के बीच में। तो वो उस प्रेशर को वहाँ मतलब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, कैसे ओवरकम करे? यार फंबल इज नेवर अ प्रॉब्लम, फंबल कोई भी कर सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर रही बात स्टोरीज याद करने की, तो स्टोरी कभी याद करनी भी नहीं होती, मतलब बाकियों की नहीं करनी होती, अपनी तुम कर ही लो। बिकॉज वो सर ने जैसे बताया, जब टेस्ट हो जाए अपनी रिपीट करते रहो दिमाग में। लेकिन जब तुम रूम में बैठ कर तब मत करो, जब स्टार्ट हो गया टेंशन तब तुम अपनी स्टोरी को साइड में रख दो। अब वो जैसे ही अगर तुमने 15-20 बार बोल लिया अपने दिमाग में, वो अपने आप क्लिक करेगी तुम्हें उस टाइम पे। फंबलिंग तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो रही बात बाकी की स्टोरीज याद करने की, तो तुम्हें स्टोरी मैं तो कभी याद नहीं करता था, मैं बस एक एवरेज दिमाग में रखता था कि हाँ इसने इतने जने बोले, इसने इतने जने। तो जैसे सपोज 20 जने बैठे हैं, मेरा 18वां नंबर है, स्टार्टिंग हो रही है चेस्ट नंबर 20 से 21। सो मैंने देखा 21 ने बोला था 2, 22 ने बोला 3, मैंने बोला हाँ 2 से 3, फिर ऐसे आगे चलता रहा। किसी ने बोला 1, किसी ने बोला 4। मैं बस एवरेज बना रहा हूँ, मैं उसी टाइम एवरेज बना रहा हूँ, मैं 4 नंबर याद नहीं कर रहा हूँ, 2, 3, 4, 1 नहीं, मैं उसका एवरेज याद कर रहा हूँ कि हाँ 2 to 3, 2 to 3, अच्छा 4 भी आ गया, चलो 3 to 4, 2 to 3 अगेन। मैं बस इतना याद रखता हूँ, किसने क्या बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ। क्योंकि मेरी नीति वो है कि मैं लीड ही सीज पे लूंगा, किसने कितने कैरेक्टर्स लिए हैं और मूड क्या है, मुझे बस इतना याद रखना है। टॉपिक तो वो खुद ही बक देंगे जब डिस्कशन होगा, बिकॉज वो सबने ऑलरेडी देख लिया है। अब तुम सब कुछ बोल दोगे तो बाकी क्या बोलेंगे? तो मैं बस इतना याद रखता हूँ जितना मुझे बोलना है। उसके बाद जैसे ही डिस्कशन चालू होता है, ट्रैक तो फैल जाता है, तो फिर तुम्हें सब सुनाई दे रहा होता है, बस तुम तभी लीड बनाओ। वो उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है कि जब वो बोल रहे हैं, जीडी चालू हो गया है, तब तुम्हें फोकस रखना है कि कौन तमीज की बात कर रहा है, तुम्हें बस वो याद रखनी है। बाकी सब तो फसड़ 18 मतलब 20 में से यार 15 जने फसड़ ही बजा रहे होंगे, 5 जने होंगे जो काम की बात कर रहे हैं। तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड ये होगी वहां पर कि तुम उन 5 जनों को पहचान लो कि वो कौन है, तुम्हें उनको साथ में लेना है। तुम 6 के 6 के अंदर हो जाओगे, बाकी 14 फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। तन्मय, like
अगेन 5 SSB का एक्सपीरियंस है। यार ऐसा होगा ना कि हम चाहे कितना भी बोल रहे हैं एजुकेटर, हमारी जो पढ़ाने वाले हैं, हमारी जात इतनी बदनाम हो रखी है आजकल कि कोई भी तिलकबंदी लगा के पंडित बन जाता है मौलवी से, है ना। तिलकबंदी लगा ली और पंडित बन गए मौलवी से। तो लोगों को ये नहीं मालूम कि सारा पंडित कौन है, मौलवी कौन है ना। तो ये हमारी हो गई। अब तू सेलेक्ट है, तेरे को टप्पा लगा के हाँ ये लड़का सेलेक्ट हुआ ऐसे ही है, लेकिन ध्यान देना है। तो 5 SSB हो गई यार। तेरे को क्या लगता है करंट इवेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? लोग भाई इंटरनेशनल अफेयर्स में IAS के बराबर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत से तो यूट्यूब चैनल है SSB जो चले इंटरनेशनल अफेयर्स पे रहे। तो तेरे से 5 बार ऐसा कितना इंडेप्थ इंटरनेशनल अफेयर पूछ लिया? मैं रिटर्न के लिए करंट अफेयर के पढ़ा, SSB के लिए तो नहीं पढ़ता। तो मतलब बेसिकली ऐसे बहुत डिटेल तो बिल्कुल नहीं पूछते हैं जैसे, लेकिन हाँ ये मैंने थोड़ा डिफरेंस देखा था। जैसे 12+2 एंट्रीज में ना वो घुसेंगे भी नहीं करंट में, दे वुड बी लाइक नॉर्मल सोशल टॉपिक्स, स्पेशली डिस्कशन के टाइम पे। इंटरव्यू में तो इंटरव्यू 10+2 एंट्रीज में तो वो इतना नहीं पूछते। लेकिन हाँ अब देखो सिंपल बात है, जीडी में तो 10+2 एंट्रीज में इतना नहीं जाएंगे सीखे पे, मतलब कि करंट इंटरनेशनल इवेंट पे कुछ जीडी बकने को बोल दिया तो 15-20 मिनट तुम शक्ल देकर दूसरे की, ऐसा तो टॉपिक नहीं आता। बोलने भी पता है कि यार 10+2 साइंस पढ़ के आया है, वो क्या ही पढ़ के आया हुआ ज्यादा। लेकिन हाँ ग्रेजुएट एंट्रीज जैसे यूपीएससी एग्जाम होगा, सीरियस हो गया यार, वो अपने आप में क्या वो एक बेंचमार्क माना जाता है कि यूपीएससी का एग्जाम निकाल के आया सीरियसली। अब उन्हें कौन बताएगी कि मैं वहां भी नहीं पढ़ के आया हूं करंट अफेयर। तो मैंने बस हाँ सी करंट अफेयर का मकसद ये है कि बस वो तुमसे ओपिनियन जानना है, और ओपिनियन बनाने के लिए तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। सो बस तुम्हारे पास ओपिनियन रहनी चाहिए। अब तुम्हें उसके लिए बिल्कुल ऐसे प्रिसाइज पिन पॉइंट यूपीएससी वाले फैक्ट्स होने चाहिए कि इसका इतना रेशियो है, इतना परसेंटेज है, वो सब नहीं चाहिए होता। तुम्हें बस क्रक्स पता होना चाहिए कि चल क्या है। अब इफ यू एज अ पर्सन आर नॉट इतना भी अवेयर नहीं हो कि तुम्हारे अराउंड चल क्या है, सो देन तो यू आर ओनली गुड फॉर नथिंग। सो मैंने बस अपने लेवल आई वाज गुड फॉर नथिंग बिफोर अपीयरिंग ऑन द एसएसबी, बिकॉज़ मुझे घंटे से कुछ नहीं पता था। सो मैंने बस बहुत थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करा था कि हाँ मेरी ओपिनियन कि जैसे इंडिया का स्टैंड क्या है रशिया यूक्रेन वॉर में, वो क्यों है, तो क्या होना चाहिए। मैंने इतना ओपिनियन बनाया काफी है। यूएसए का क्या रोल है इतना पढ़ा, मेरा क्या ओपिनियन है, बस मैंने ओपिनियन अपना वो रखा, ओपिनियन बैक कर दिया जो मैंने पढ़ा था उससे। इतना ज्यादा मैंने कुछ फोकस नहीं करा कि मुझे ये पढ़ना है, इतना कोई वो नहीं है। उनको खुद नहीं पता होता आधी बातें इंटरव्यूअर्स को, वो पूछते हैं जो उन्हें पता होता है, तुम उन्हें वो पता हो जो तुम्हें पता है। अब वो प्लान हो जाएगा। आई विल गिव यू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल ऑफ दैट। उसने मुझसे इंटरव्यू में करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं था, लॉजिक से रिलेटेड था, साइंस बेसिकली बेसिक्स से रिलेटेड था। उसने मुझसे 10 यूजेस ऑफ ग्लास पूछे थे, मतलब उसके यहाँ सामने ग्लास रखा हुआ था पानी का, तो मैंने बताना शुरू करा। मैं 8-9 पे पहुंच गया, मुझे समझ नहीं रहा है, तो मेरे एकदम दिमाग में आया कि सर इट कैन एक्ट एज अ मिरर। तो वो बोलता है, उसने मुझे देखा कि कैन यू प्लीज इलैबोरेट हाउ इट कैन एक्ट एज अ मिरर। तो मुझे नहीं पता वो चीज, तो अब मैंने उसको पूरा समझा दिया कि सर इसमें पानी भरा हुआ है, अगर हम इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम रख देते हैं तो इट विल एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ से आगे ऑब्जेक्ट रखूंगा तो वो वर्चुअल इमेज बना देगा, दैट विल बी एक्ट एज अ मिरर। उसे कुछ नहीं समझ में, मुझे देख रहा है ओके कंटिन्यू। तो फिर मैंने और 1-2 यूज बताया, फिर उसने रोक दिया ठीक है। तो अब उसे तो नहीं पता मैंने क्या वक्त दिया, लेकिन मैंने वक्त दिया कॉन्फिडेंस से, मैंने समझा दिया वो सही है, उसे पता है वो सही है, लेकिन उसे पता नहीं है ना वो क्रॉस सेक्शन कैसे करेगा। तो अपनी बात है, कहता है कि अब मैंने फिजिक्स छेड़ी है, तो उसका मकसद है वो तो कि भाई अभी फिजिक्स छेड़ेगा कि ऐसे कंफर्म करना है जो उसको पता है उसके लेवल पे। तो उसने बोला तन्मय यू हैव प्लेड क्रिकेट सो यू नो क्रिकेट बॉल में एक सर पे शाइनी होती है, एक हार्ड ऑप्टिकल रफ होती है, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। मैंने बोला सर इट इज यूज्ड बाय पेसर्स। बोलता है कि अच्छा इट इज यूज्ड बाय पेसर्स क्यों सर, इट गिव्स देम स्विंग। तो बोलता है अच्छा फिर उसको अब वो पूछ रहा है तो उसे पता है, बोलता है कि अच्छा सरफेस अगर शाइनी आउटसाइड है तो कहां स्विंग होगी। तो अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैंने स्पिनिंग करी है, पेसिंग नहीं करी है। सो मैंने कहा इसको अगर यहाँ ना कर दिया तो ये मेरी एसएससी मार देगा, ये अब दोबारा कैसे करेगा। मैंने सोचा, फिर मैंने लॉजिक लगाया जितना मैंने 12th में पढ़ा था कि हाँ शाइनी सरफेस है यहाँ तेज हवा होगी, सरफ है यहाँ कम होगी, बॉल अंदर की तरफ पड़ेगी। मैंने कहा सर इनस्विंग हो जाएगी, तो अब वो सही भी निकला ठीक है। तो बोलता है इनस्विंग हो जाएगी, कैसे इनस्विंग होगी, बोलते ऐसा कंसेप्ट क्या होता है। अब उसको तो कंसेप्ट पता है, मैंने समझा दिया बिना कंसेप्ट का नाम लिया। मैंने बोला सर कंसेप्ट नहीं पता, वो आप देख लो, मैंने समझा दिया क्या होता है। तो बोलता है ओके। सो करंट नॉलेज इंटरव्यू लेवल पे वो पूछेगा जो उसे पता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो तुम्हें भी पता हो।
तो इट्स ओके टू लेट दैट पास, राइट। और रही बात जीडी की, जीडी में फैक्ट से ज्यादा ओपिनियन मैटर करता है, लेकिन ओपिनियन अगर काउंटर हो रहा है तुम्हारा, अगर किसी के पास काउंटर ओपिनियन है तो फैक्ट्स मैटर करते हैं। सो अगर तुम अपना कोई ओपिनियन बना रहे हो व्हिच एज अ लीडर इज नेसेसरी, व्हिच एज अ ऑफिसर इज नेसेसरी, दैट यू शुड हैव एन ओपिनियन, उसको तुम्हें बैक करना पड़ेगा फैक्ट्स के साथ। तुम बस अपना ओपिनियन प्रूव करो, बाकी ओपिनियन तो ठीक है यार, इट्स अ डिस्कशन, क्योंकि अपने ओपिनियन चलते हैं। यू माइट नॉट नो व्हाट दे नो एंड दे डोंट नो व्हाट यू नो, सो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव अहेड विद दैट। यार ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने, इससे मालूम मतलब ऐसी यू नो लड़के बोलते हैं टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन जब होते हैं कि इस रूम में कितनी एयर आ सकती है। अरे यार मैं तो आर्ट साइड का हूँ, मुझे भी मालूम है कि एलपीएच नहीं, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब मैंने देख लिया कि भैया एक टाइल लगी हुई है, उससे लेंथ भी कैलकुलेट हो जाएगी, ब्रेथ भी हो जाएगी। 6 फीट का मैं हूँ, लगभग दूर आ जाऊंगा, 12 फीट की हाइट हो जाएगी, 10 फीट की हाइट हो गई, बता दिया अप्रोक्सीमेटली दिस मच। अब लड़के इसमें टेक्निकल क्वेश्चन करने में लगे पड़े। वहाँ कोई भी चीज होती है सेकंड लेवल रीजनिंग एबिलिटी कि आप आंसर से पहले रीजन कर सकते हो या नहीं। अब जैसे कि अब ये है, पता नहीं सर मैं रिमेंबर इट और नॉट, ये पैचेज मैंने कराया नहीं, कराता हूँ मैं। 10 यूज ऑफ पेन, 8 यूज ऑफ बेंच, 9 यूज ऑफ बॉक्स। क्यों? तुम्हारा दिमाग खुले, जो चीज तुम्हें दिख रही है वो वैसी नहीं और भी पर्पस में यूज हो सकती है, राइट। अब जैसे इसकी लीड है, अब ये लीड बांधने में भी यूज हो सकती है, आदमी को बांधने में भी हो सकती है, टूट जाएगी ना। तो पर्पस तुम्हारा दिमाग डिसाइड करता है, और यही है रीजनिंग एबिलिटी कि एक ऑफिसर कितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट। फौज का फंडा है मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट। जुगाड़ पे चल रहा है हमारी फौज, मतलब दिस इज नथिंग बैड, बट जरा सोच के देखो, हाँ वही यूएसपी है भाई, चाहिए जरा सोच के देखो कि मिग 29 मिग 21 बाइसन 21 मिग 21 बाइसन वो समवेयर मेड इन 1965 एंड 70। आजकल गाड़ियां नहीं मिलती है मॉडल पे, 1970 गाड़ी की 15 साल की एक्स्ट्रा की गाड़ी की है भाई साहब। हमारे पायलट जितने एक्सपर्ट है कि प्लेन उड़ाए पड़े हैं, और उससे गिराए पड़े हैं F-16, उड़ाए नहीं पड़े, उससे गिराए पड़े हैं F-16। तो ये फौज इज बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ जुगाड़ मेंटालिटी, और तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तुम्हें रिसोर्स नहीं है कि जैसे अमेरिकन सोल्जर्स हैं कि नहीं वी विल वांटेड एट अफगानिस्तान, जो हमारी बियर सप्लाई है, ये बियर यहाँ लगानी है, एक यहाँ लगानी है, एक्स्ट्रा लगानी है, बियर पीते हुए दबे जाएंगे। भैया हमारा जवान जो होता है ना, वो तो पानी भी तब पीता है मिल जाता है ना। बेसिक डाइट है गुड़ और चना, कि गुड़ चना बोलो और चढ़ जाओ। एक बार तो चावल नसीब नहीं होते हैं, तो जो जब ऑफिसर विल बिहेव लाइक रॉयल ऑफिसर्स के मैं आपको बिना सिगार पिए जाऊंगा इन्हीं फील्ड में, तो हाउ विल जवान बिहेव ना। तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि रीजनिंग एबिलिटी हो, जुगाड़ू हो, उनका काम करना जानता हो चाहे कैसे भी हो। अब इस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर ये चीज है दैट यू डू नॉट गिव अप, तुम ट्राई मारते हो नहीं हो रहा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ये एप्टीट्यूड फॉर राइट। अब तो ज्ञान का भंडार हुए काफी मिनट के लिए, तो भाई कुछ है आईएमए की टिप्स हमने ध्यान में रखना। एक तो ना तो सबसे आगे ना सबसे पीछे, बीच में। दूसरी चीज वहां के लिए फंडा, मछली हंसती है जब मुंह बोलती है ना। तो मुंह बड़े कम समय पे खोलना, बिल्कुल ही जरूरत हो, जब कोई तेरा नाम लेके पूछेगा तब मैं मुझे ये बता। अगर वो पूछ रहा है कि तुम ग्रुप मुझे बताओ, तो ग्रुप में बोल रहे थे किसको, तुम अपना शांत हो, समझ रहे हो। और रनिंग रोडिंग तो तूने एक्टिविटी होगी। तो भाई लोग अब ये है कि थोड़ा खींच ज्यादा गया है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है, और आजकल यूट्यूब एंटरटेनमेंट का साधन है, तो इतनी ज्ञान की बात तो सुनने का भी नहीं, वो एकदम से वीडियो ऑन होगा और जैसे कि आपकी बात में नीचे चला जाएगा। फिर एक तो कोई रहता है जो इतने एंड तक देखेगा भी, बट एसएसबी सबको क्लियर करनी है, पुट इन नहीं मारना है। मतलब चाहे हमारे देश में कि आसानी से मिल जाए और सबसे ज्यादा मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े, बिल्कुल है ना। तो फाइनल ये है कि कुछ पूछना है मंथन, दीपांशु, इशिरा, यू कैन आस्क।
भाई अनऑफिशियल इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछ लो भाई, अनऑफिशियल इनफॉर्मल कुछ भी पूछ लो कुछ ज़्यादा फॉर्मल ना रखो। भाई मेरा यही है कि जो क्वेश्चन है आपसे कि जैसे जो मैं पूछ रहा था CDS वाला, जो एस एक तरफ आपका रिटर्न है और दूसरा एक तरफ जैसे आपने बताया एनसीसी मैंने ज्वाइन इसलिए करी ताकि मैं अपने आप को ग्रूम कर पाऊँ, मतलब उसी के लिए अपने आप को तैयार कर पाऊँ। और जैसे आपने बताया मतलब पहला इतना मतलब एडेप्टेबिलिटी नहीं थी, जो आप बता रहे सोशल एडेप्टेबिलिटी नहीं थी, वो बाद में आई। तो उसमें मतलब एनसीसी में कैसे आपने ज़्यादा आपकी हेल्प करी और इधर बेसिकली ही वांट्स टू आस्क यू है कि टाइम कैसे मैनेज किया भाई एनसीसी रिटर्न के लिए, अब क्योंकि रिटर्न बहुत बड़ी तो कर होंगे नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट जो है इसकी कुछ जान दे सको तो। भाई जब करने पे आती है मेरे सर पे पड़ती है तो सब होता है। पहली बात तो जब तुम्हें पता है कि 1 महीने बाद एग्जाम है और तुम्हें वो क्लियर करना है, तुम करोगे कुछ भी हो जाए, फिर तुम चाहे रात में जाओ चाहे तुम दिन में सो, कुछ भी करना है करो। लाइक मैंने करा था, आई यूज्ड टू स्टडी, मैं रात के 10 बजे वॉक करने बैठता था, प्रॉपर सीरियस वॉक, और सुबह 4 बजे उठता था 3 वॉक करके, और एक दिन में फिर एफ कैट का वॉक करता था। एंड उसके बीच में थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो पढ़ लिए, जो मुझे लग रहा है कि मेरी इस चीज़ में कमी है, फिर जो भी नया अपडेट आया है वो पढ़ लिया। सो एक चीज़ तो ये है, अगर तुम्हें करना है तो तुम कर ही लोगे, फिर भाई नींद सब उड़ जाती है। तो वो लाइक मैंने बोला था ना कि तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो तुम्हारा पिन पॉइंट बनता है, उसके अराउंड सारी चीज़ें होती है, तो वो तुम प्रायोरिटी रखोगे पहली बार, और उसके अराउंड सारी चीज़ें करोगे। एंड एज वी टॉक्ड अबाउट सोशल एडेप्टेबिलिटी की वो एनसीसी में मैंने कैसे ग्रो करी। सो इट स्टार्ट्स विद कि जैसे अब मैं घर में रहा हूँ, लाइक सर ने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था घर में बच्चे अकेले पलते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। सो 2 में क्या माँ बाप तो करते ही है कि अगर तुम कुछ भी ड्रामा करोगे वो कर देंगे पूरी, तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ पूरी दुनिया भी ऐसी है कि हाँ भाई सब मिलना ही है, सो मैं क्यों एडजस्ट करूँ। सो एनसीसी में जब आई मेट दीज पीपल, मेरे सीनियर भी हैं जो गालियाँ बक रहे हैं, जो रगड़ा दे रहे हैं खामा का, पनिशमेंट मिली है, तो वो ईगो जो होती है ना, पहली बात तो वो ईगो नीचे जाती है। एंड जैसे तुम्हारी ईगो नीचे जाती है तुम खुद से बढ़कर सोचने लगते हो, जो मैं करने लगा कि हाँ ठीक है तो मिलना ही है, सो इसके आगे सोचते हैं कि हाउ वी कैन अवॉइड इट एज अ ग्रुप। सो जैसे ही ग्रुप आता है ना, तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंसेस सब ऐसे पानी में चली जाती है, फिर यू हैव टू डाइल्यूट योरसेल्फ। सो दैट इज वन थिंग कि मेरी एडेप्टेबिलिटी कैसे बढ़ी कि मैं ग्रुप के साथ काम करने लगा। सेकेंडली जहाँ भी मौका मिलता लीड लेने का, सो मैंने लीड लेने का मौका लिया। अब मैं हूँ थोड़ा मतलब ऐसा बंदा कि जिसको हर काम बिल्कुल परफेक्ट मैनर में चाहिए, राइट, और मेरी बहुत गंदी गिलस्ती है अगर वो ना होगा तो अब मुझे पता है मेरे पास अब एक ग्रुप है, अब मेरे पास 200 जने हैं ऐसे इन अ कैंप, एंड मैं चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा टेकी साइड का बंदा था और टेकी काम होना था, अब मैं 200 से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उन सबको ही आता हो। सो अब मुझे कैसे अडेप्ट करना पड़ेगा कि मैं उन्हें कंपोनेंट्स दूंगा, एंड जितना वो कर पा रहे हैं मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ इससे ज्यादा नहीं है, मैं इसको मैंने इस पे अडेप्ट कर लिया कि हाँ इससे ज्यादा नहीं करेंगे, अब जो करना है मुझे करना है। अब मैं उन पे किल्स दूं कि तुमसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सच्चा कि मैं खुद ही कर दूंगा, जितना उन्होंने करा उस पे आई विल इम्प्रोवाइज एंड आई विल गिव इट फॉरवर्ड। सो दैट थिंग, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हाउ आई वर्क ऑन माय एडेप्टेबिलिटी, कि मैं दूसरों के साथ काम करने में कैसे वो रख रहा हूँ अपना, मतलब अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे रहा हूँ विदाउट मेकिंग देम फील दैट दे आर इंफीरियर टू मी। सो इन दैट आई हैड टू प्रैक्टिस अ लॉट, एंड वो मुझे ऐसे ही आया जब मैंने ग्रुप में काम करा। सो दैट्स हाउ आई इंक्रीज माय एडेप्टेबिलिटी एज अ सोशल बीइंग। और अभी तो फिलहाल आपको एग्जांपल मुझे ऐसा चीज तो क्लिक नहीं कर रहा है, बट हाँ ये सबसे बड़ा एग्जांपल है जब तुम अपने हिसाब से सोच लो कि मैं ऐसा होगा सबको ऐसा होना चाहिए, अगर मैं परफेक्शनिस्ट हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही होंगे, सो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो एक बार वो जब मैं पहली बार सेलेक्ट हुआ था, सो मेरे दिमाग में ये आ गया था कि भाई मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्शनिस्ट हूँ, ये वो है, तो मेरा घर में भी एटीट्यूड वही हो गया था, मतलब ऐसा हो गया था कि मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कि मम्मी ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा, मैं पापा को बोल रहा हूँ ऐसे नहीं ऐसे ही होगा, मतलब मैंने एक तरीके से मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी वो नेचर ऐसी हो गई कि हाँ मैं तो परफेक्ट हूँ, सो बाकी अगर कोई सही भी कर रहा है लेकिन मैं परफेक्ट हूँ, सो उसको वैसे ही करो। अब मैं ऐसे करूँगा तो सारे बंदे मुझसे ऑफेंड होंगे, एंड इन एसएसबी अगर तुमने ये गलती कर दी एज इन अ ग्रुप, तुम्हारा पूरा ग्रुप तुम्हें मिलकर तुम्हारी मारेगा, ठीक है, कुछ भी कर लेना, फिर तुम उनके लिए कितना अच्छा कर लेना, लेकिन एट द एंड मोमेंट दे विल बी अगेंस्ट यू। सो इस तरीके से मैंने मतलब एनसीसी के थ्रू ये अपने अंदर इस तरीके से काम करा था पूरे टाइम। देखिए इन दी एंड आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, ये जो तुमने बोला ना ये बिल्कुल सही है कि हम लोग अकेले बने हैं
दोस्तों के साथ रहे हैं, हर जगह जहाँ हमारा ओपिनियन काउंट होता है हम लोग वहीं पे हैं। हम लोगों ने वो सिचुएशन हैंडल नहीं करी जहाँ हमारा ओपिनियन सेकेंडरी होगा या हमारा ओपिनियन काउंट ही नहीं हो सकता है। हाउ टू टैकल दोस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन यू गो टू एसएसबी और मे बी व्हेन यू आर सर्विंग इन आर्मी, तो ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी कि आपका ओपिनियन काउंटेबल ही नहीं है, आपका ओपिनियन वर्थ ही नहीं है। हाउ डू यू टेक दैट नो इन योर पर्सनैलिटी? किसी ने मना कर दिया, किसी ने नो बोल दिया तुमको, तो तुम कैसे उसे हैंडल करते हो? ये अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता है। मालूम तो क्योंकि नए लोगों से मिलते नहीं है, नए सिचुएशन में जाते नहीं है। नए तो मैं बताऊं तो शायद तुम्हारी लाइफ में पिछले 4-5 साल से कोई नया इंसान ही नहीं आया हो, सब वही पुराने फ्रेंड भी बनाने छोड़ दिया हमने। जब नई सिचुएशंस को एक्ट नहीं करोगे, उनकी यूज टू नहीं आओगे, तो यू विल फील ऑकवर्ड एवरी टाइम यू गिव द कंपनी कंट्रोल। तो गाइस, आई मीन दिस वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। इतना हेल्दी कोई होता नहीं है, तो हमें थोड़ा गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड ऐड करनी चाहिए थी, थोड़ा मुझे हंसना चाहिए था करके, थोड़ा तो ये इंसिडेंट प्रेजेंट करके बनानी चाहिए थे कि मुझे बस में वो उनके ट्रेन में वो लड़की मिली है। कोई नहीं रहता सर, बर्थडे में नहीं, कोई सुनना पसंद नहीं करता। अच्छा लड़की मिली, अरे 1.5 लाख, फिर तो सब बकवास हो रही। अगर ये चीज तुम्हें सच्चाई लगती है तो प्लीज शेयर द वीडियो एंड लाइक इट एज वेल, एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर कमेंट्स, so you can give any comments and you can ask anything you want to ask in details. So by this we'll be signing off now, and take care, God bless you, and jai Hind.